prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनो पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री निताई गौरंग की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हरे कृष्णा so welcome everyone. We'll start with our first activity, that is quiz of yesterday's class. So I'm going to share the question and result also to all of you. So yesterday we had discussed about the last 3 sections of Bhagavad Gita of second chapter. So Bhagavad Gita का जो second chapter है बहुत लंबा है, second largest chapter of Bhagavad Gita, entire Bhagavad Gita. Entire Bhagavad Gita is having 18 chapters, and the last chapter, 18th chapter, is the biggest chapter, and second chapter is second biggest chapter. So second chapter में 72 verses हैं. So इसको आप 5 section में divide कर सकते हैं second chapter में. So when you divide all the chapters, then it becomes very easy for us to understand, comprehend, and when you finish section wise, then you have a accomplishment feeling that you have finished one section, now second section. And in all the different sections, Krishna is explaining different subject matters. So that is how it becomes very clear. अच्छा इस sections में कृष्णा ने क्या बताया, इस section में कृष्णा ने क्या बताया. Like if we talk about second chapter first section, then what is the name of first section? कौन बताएगा? First section of second chapter of Bhagavad Gita. क्या नाम है first section का? Arjuna's confusion and submission. Yes, very good, correct answer. So Arjuna was confused and he submitted to Krishna. And first section we gave a lot of time. In fact, 2 classes or 3 classes I took for the first section, because in the first section where Krishna starts speaking, so Prabhupada, in fact, when Krishna starts speaking, Vedvyas writes Sri Bhagavan Uvacha. So we discussed why Vedvyas is writing Sri Bhagavan, not Sri Krishna Uvacha. Like Sanjay spoke, then Vedvyasa wrote Sanjay Uvacha. When Dhritarashtra is speaking, then Vedvyasa is writing Dhritarashtra Uvacha. When Arjuna is speaking, so it is written Arjuna Uvacha. But when Krishna started speaking, then it was not written as Sri Krishna Uvacha, it was written Sri Bhagavan Uvacha. So we discussed thoroughly that how Krishna is Bhagavan. So we had discussed 3 phases of understanding of any truth. So similarly, absolute truth also has 3 phases of understanding. First one was energy or Brahman. In Sanskrit, it is called Brahman realization or energy. Second was localized aspect or Paramatma realization. Third is personal aspect or Bhagavan realization. So Krishna is Bhagavan.
सो मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे मैं क्लास लेता हूँ तो मैसेज करता हूँ एवरीडे ग्रुप में. सो बाय सीइंग द मैसेज यू अंडरस्टैंड दैट यस प्रभु हैज सेंड दिस मैसेज. सो मैसेज देख के दैट मैसेज इज माय इम्पर्सनल एनर्जी presence in your mobile. You, by seeing my message, you feel that Prabhu has sent. So that is my impersonal presence. Then now you are attending the class, so my video is appearing on your mobile screen or laptop. So this is my localized, I am there in your mobile, everyone's mobile. But that is not me. That is me only, but not me also. So we discussed Achinta Bheda Bheda Tattva, how Krishna is everywhere. Krishna is everywhere present in his energy form, but at the same time, Krishna is not here. Krishna is there in his Golok Vrindavan in personal form. So this is called Achinta Bheda Bheda Tattva. Krishna is everywhere, but still Krishna is not everywhere. Krishna's personal form is there in the spiritual world. Krishna's energy manifestation, that first one is here in this material world. So the third one is when you come, then I give the understanding that second one is you all are attending my classes and having my, you are seeing me, but that is not exactly me only. Yes, that is me. My localized aspect is that, but my personal, if you want to know about me, then you have to come to me and discuss with me, be with me, live with me, then you can understand about my personality. So these are the three phases of understanding. Similarly, Krishna also has three phases: energy, Paramatma, and Bhagwan. So Krishna is Bhagwan. So in first section of Bhagavad Gita, second chapter, we discussed about this aspect thoroughly. Then we discussed who can be the spiritual master, because Arjuna was confused, so he surrendered to Krishna. So we talked extensively on this subject matter, that what is the qualification of a spiritual master? Who can be the spiritual master? At great length we discussed. So first section we dedicated 3 classes, but after that, then second section was Sankhya Yoga. That means Sankhya Yoga means Krishna is speaking about soul philosophy, that how we are not this body, we are spirit soul, and giving all different understanding about the soul. So we discussed that also. Krishna gave analogies and even logic also he gave, regions also he gave. He says that just like we change the dress, similarly body, soul changes this body. Body is like a dress. So intelligent person who is a wise man, he does not lament for the body. When body dies, he does not lament because he knows this is a dress. So an intelligent man, wise man, he focuses about the, he's conscious. He gives more time for maintaining the soul, not for the body. He will maintain the body also, but he will give more time and energy and consciousness for maintaining the upbringing of the soul. So this understanding Krishna gave, that this body is like a dress. Just like we are, जब हमारा पुराना कपड़ा फट जाता है तो हम बहुत दुखी नहीं हो जाते, उदास नहीं हो जाते. We are not shattered, right? अरे कपड़ा ही तो था, फट गया, नया ले लेंगे. So ये understanding हमारे कपड़े के साथ होता है. उसी तरीके से कृष्णा बोले, जिस जैसे आप एक कपड़े के लिए सोचते ना, वही सेम फीलिंग आप ऐसे ही सोल के लिए सोचो, बॉडी के लिए सोचो. ये बॉडी भी एक कपड़ा ही है. कल ऐसे ही एक स्टूडेंट डिस्कस हो रहा था, ये MBBS कर रहे हैं. सो ही वाज एक्सप्लेनिंग, प्रभु हम लोग जाते हैं, कभी कभी ड्यूटी लगती है 6 घंटे की ड्यूटी हॉस्पिटल में, RUHS एक हॉस्पिटल यहाँ पर. सो प्रैक्टिकली यू हैव टू कट द स्किन, सॉरी स्किन आपको कट करना है और आपको ऑपरेट करना है, और पूरा मतलब आपका इंटरनल बॉडी, इंटरनल में क्या क्या सब दिख जाता है. सो प्रैक्टिकली यू सी दैट दिस बॉडी इज हॉरिबल. दिस बॉडी, पीपल आर मैड आफ्टर, बट एक्चुअली दिस बॉडी इज वर्थलेस. You can see in the hospitals, especially doctors see, but Maya is so powerful. Just see the illusory energy of the Lord. Doctors are seeing that this body is useless. Body is nothing but a dress only, like a dress, what Krishna is saying. But still they get illusioned and they get attracted. Same doctor who has done operation in OT, operation theater. He has cut the skin and all kinds of internal world. He has seen everything. All nasty things are there. But still, when he come out of the OT, he will be flirting with the girls. Same doctor, he will be doing all illicit activities. So this is called illusion. Even after seeing the truth that this body is useless, this body is nothing worth, it is the soul who is making this body worthful. Otherwise, actually, this body is worthless. When soul leaves the body, what do? We keep body in a showcase. Is it that? No.
We just immediately we try to burn the body or dispose the body. अगर 2-3 दिन तक आप बॉडी को रखे रहोगे तो बॉडी स्मेल आने लगता है, इट स्टार्ट्स स्मेलिंग. और डेप जब सोल बॉडी को छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं, जो लोग टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अरे नहाओ, बॉडी टच करके आए हो ना. नाम लेना बंद कर देते हैं. अगर किसी का डेथ हो जाता है ना तो उसका नाम नहीं लिया जाता, उसको अशुभ बोला जाता है, नाम नहीं लेते. शरीर बोलते हैं, शरीर, उनका शरीर, शरीर शरीर. और जो शरीर को टच करता है उसको नहाना पड़ता है. जैसी हाउ हॉरिबल दिस बॉडी इज, हाउ अनटचेबल दिस बॉडी इज, है ना. वही बॉडी एक समय बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन ये बॉडी अब उसको कोई टच करता है तो बोलते हैं अरे जाओ नहा के आओ, तुम अछूत हो गए हो, जाओ घर में घुसना मत, तुम जाओ नहाओ. करेक्ट है ना. हमारे कल्चर में ये क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि बॉडी एक्चुअली अछूत है. which doctors see every day, but Maya is so powerful that it makes us forget. Maya means illusory energy of Mother Durga. Durga Ma is having illusory energy, is working in this material world. Durga Ma is energy of the Lord Krishna, and Krishna is managing this world through Mother Durga. And Durga Ma is having three modes. She is working, maintaining this world through the agency of three modes. So these three modes, Sattva-guna, Raja-guna, Tamo-guna, we will be discussing in our 14th chapter. In 3rd chapter also it is going to come. So these three modes are actually, making us illusioned completely. We forget everything. This is all because of three modes. Anyway, so illusion के कारण हम reality देख नहीं पाते, भूल जाते, देखते भी तब भी भूल जाते हैं. So सेकंड चैप्टर में, सेकंड वर्ड सेक्शन में कृष्णा ये सब बताते हैं कि बॉडी क्या है, ड्रेस के जैसा है. तो हमें ड्रेस ही समझना है इसको. तो जितना ड्रेस का केयर करते हैं, ड्रेस को साफ करते हैं डेली बेसिस पे, उसको आयरन करते हैं, जितना ड्रेस को केयर करना चाहिए उतना ही करें बॉडी को. लेकिन बॉडी के लिए मैड नहीं हो जाना, पागल नहीं हो जाना. 24 आवर्स वी आर मैड फॉर द बॉडी. वो डेथ के समय हमें पता चलता है कि बॉडी यूजलेस हो जाता है ना. सो सोल एक्चुअली मेन पर्सन इज सोल. सो हमें सोल को फोकस करना है. तो ये सेकंड सेक्शन था. थर्ड सेक्शन क्या था, Arjuna was encouraged by Krishna to perform his duty. Arjuna, you get up and fight without caring for loss or gain, victory or defeat, happiness or distress. You just fight, because when you fight for religion, then you go to heaven. Even if if you are killed, then you will go to heaven and enjoy. If you win, you will, anyway you are going to enjoy here in this earth. So third section था. Then fourth section was Buddhi Yoga. बुद्धि योग में कृष्णा बताते हैं कि आपको कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस एक बुद्धि योगा है, इसको आप करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाएंगे. इनफैक्ट देयर इज वन वर्स व्हिच आई कुड नॉट टेक यस्टरडे. इन सेकंड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन इट कम्स, आई थिंक इट इज 42 या 41 वर्स, वेयर कृष्णा सेज स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. So just little advancement in this bhakti process, what we are doing, little advancement when we chant Hare Krishna Maha Mantra. So even if you have advanced little bit, that little advancement can protect us from the greatest type of fear. Krishna is saying in this verse, Neha Bikram Naso Asti. You can open that verse if you have Bhagavad Gita. Neha Bikram Naso Asti, 2.41 or 42. So this is very, very powerful. Buddhi Yoga, Bhakti Yoga is very, very powerful. Small advancement. एक माला आपने जप किया, हो सकता है आप बाहर जाने वाले थे, एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक माला आपने जो जप किया आपको बचा सकता है. बहुत ग्रेटेस्ट टाइप ऑफ फियर से वो भगवान के नाम का जप बचा लेता है. सो वी शुड नेवर अंडरस्टिमेट दिस भक्ति प्रोसेस, बुद्धि योगा, जो कृष्णा फोर्थ सेक्शन में बताते हैं. देन फिफ्थ सेक्शन, सिक्स्थ सेक्शन आता है, फिफ्थ सेक्शन आता है, लास्ट इज द फिफ्थ सेक्शन. 5 सेक्शन है. सो फिफ्थ सेक्शन में जो है अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पर्सन हु इज एक्चुअली परफॉर्मिंग बुद्धि योगा and who has transcended these three modes. जो तीन मोड्स को ट्रांसेंड कर लिया है, वो जो प्योर स्पिरिचुअलिस्ट बन गया, उसके क्या सिम्टम्स हैं. तो पूरा क्वेश्चन आंसर होता है फिफ्थ सेक्शन. सो दैट इज हाउ सेकंड चैप्टर इज एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड. सो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कर्म योगा. So before that, let us see the questions of yesterday's class. So yesterday we had quiz. So the first question was, which verse is also called as the amazing verse? That you all know, verse number 2.29. Which example best suits the understanding? Use the resources provided by the Lord to serve the Lord. Soldier killing people for his sense gratification. Soldier fighting for the government, both A and B. So this
दिस एग्जाम्पल विच वी डिस्कस्ड yesterday, सोल्जर वाला एग्जाम्पल है, बहुत ही अप्रोप्रिएट है, हमेशा याद रखना। एक सोल्जर अगर देश की सेवा के लिए अगर वो एनिमीज को, लोगों को मारता है, तो गवर्नमेंट उसको अवार्ड देती है, करेक्ट। लेकिन सेम सोल्जर घर आके अगर वो किल करता है, सेम एक्टिविटी करता है, ही विल बी पनिश्ड इवन दो ही इज अ सोल्जर। इन द सेम वे, वी if we serve the Lord, then we'll be awarded, otherwise we'll be punished. सो लोग बोलते नहीं, इतना सफरिंग क्यों आता है, कोरोना क्यों आता है लोगों के जीवन में, ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आता है, हमने तो कुछ किया नहीं था। नहीं, हमने कुछ किया है तभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे प्रॉब्लम नहीं आता। अब वो आदमी सोल्जर बोले कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैंने तो वहां पर 100 लोगों को मारा, वहां पर आपने मुझे अवार्ड दिया, वहां पर आपने मुझे ग्लोरीफाई किया, और अभी तो आप मुझे यहाँ पर पनिश कर रहे हो, जेल में ले जा रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने गड़बड़ किया, अधर्म किया। well, अधर्म means when you don't follow the instruction of the authority, that is called then you get punishment. Similarly, when we don't follow the authority, who is Lord Krishna, then we'll be punished. That is called adharma. So this example is very important. You all can always remember this example. So option C will be correct. The classification of the different varnas in varnashram dharma is primarily based on wealth and power, no. Birth and family lineage, no. गुणा एंड कर्मा, द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। वर्णाश्रम धर्म क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 4 कैटेगरी बनाई गई है, ये गुण और कर्म के हिसाब से। अगर आपके गुण ब्राह्मण जैसे नहीं है, सो यू आर नॉट अ ब्राह्मण, यू आर अ शूद्रा, if your activity is like a Sudra. Fourth, what is dharma of Vaishyas? Go Raksha. Go Raksha is dharma of Vaishya. What is the duty of Kshatriya? Fight on religious principle. So first option will be correct. Who is the enjoyer in the body? Hand, head, stomach, legs. So who is the enjoyer? Actually, stomach is the enjoyer. So when legs, head and hands, they work cooperatively to satisfy the stomach, then all the limbs, legs, heads, hands, they will be happy. Otherwise, they strike. No, we are not going to serve the stomach. Suppose leg, head and hands, they strike. They strike that it's enough. Enough is enough. Whole life we have been serving the stomach. This stomach has become a boss, and he's making us to work hard, and he's sitting and enjoying. And suppose all these limbs they striked, so who will suffer? These limbs only will suffer. Leg will suffer, head will suffer, hands will suffer. So they have to cooperatively work for the satisfaction of the stomach, or if stomach is satisfied, then all the limbs of the body will be satisfied, correct. In the same way, when we serve Krishna, who is the root, then all of us, whole world will be satisfied. Otherwise not possible. If we all striked, if we went on a strike, no, we are not going to serve Krishna. If we become rebellious, that's what today the situation is. 99% population has rebelled against Krishna. They don't want to serve Krishna. They don't want to chant Krishna's name. They don't want to give anything to Krishna. They want whatever they get, they want to enjoy. So then we can never be happy with this. So this analogy also is very important to always remember. कभी भी आपको अगर आप डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, तो आप इमीडिएटली ये एनालॉजी याद करिए कि जैसे पेट है, पेट को अगर नहीं खाना देंगे तो बाकी लिम्स दुखी हो जाएंगे। तो सारे लिम्स को मिलके पेट को सेटिस्फाई करना है। पेट सेटिस्फाइड, सारे लिम्स सेटिस्फाइड। उसी तरीके से हम सब लोग मिलके कृष्णा को जब सेटिस्फाइड करेंगे, देन नेचुरली विल बी सेटिस्फाइड, स्पॉन्टेनियसली विल बी सेटिस्फाइड। The moment you serve Krishna, immediately you will become happy. This is the secret of becoming happy. Unfortunately, people don't know this secret of becoming happy. They are independently trying to satisfy themselves. Therefore, they are getting frustrated because this is not the art of becoming happy. The science of becoming happy is you serve Krishna. So when Krishna is served, then immediately you'll become happy. So therefore, devotees are the happiest person. Which analogy explains the understanding that to become happy, we should serve the Lord? Parts and parcel of the Lord, body part serving the stomach, watering the root, all of the above. So all of the above. ये सारे जो last D option है correct. Which verse of Bhagavad Gita talks about karma kanda? So 2.42 to 45. This section talks about karma kanda. कर्म कांड में क्या है? इनकी वर्शिप करेंगे तो ये मिलेगा, इनकी वर्शिप करेंगे तो ये मिलेगा। सो ये इसको बोलते हैं कर्म कांडा। सो कर्म कांडा सेक्शन को बोला गया है एक ऐसा पेड़ जिसमें बहुत सारे कांटे हों और उसमें फूल भी हो,
or a fool say attracted, attractive flowers are there, but at the same time there are thorns on that tree. The moment you go and try to pick the flower, thorns will prick you. You pick, here you will be pricked. You try to pick, you will be pricked by the thorns. So there will be scratches on your body. There will be cut in your body. Similarly, Karma Kanda section, even though it is very lucrative, you get, but this is not good. This is temporary. The result which you are going to get is temporary. So therefore, Karma Kanda section Krishna has rejected. Who said the following? The disciple must stick to whatever the spiritual master orders. Simply by following that line, one sees the supreme personality of God. Very important line it is. मैंने बोला था अगर भगवान को देखना है तो स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करना पड़ेगा. कल ये हमने एक श्लोक में समझा था. वो कौन श्लोक था? व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम. ये श्लोक था और इसके परपोर्ट में कौन बोलता? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक आचार्य को हम रेफर करते हैं कि ये आचार्य बोलते हैं इस श्लोक का क्या मतलब. तो आचार्य कौन थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. सेंस एंजॉयमेंट इज कंपेयर टू व्हाट? सॉल्ट. सो सॉल्ट वाला एनालॉजी हमने डिस्कस किया था. सो कल हमने बहुत सारे एनालॉजीज डिस्कस किए थे. वो सारे एनालॉजीज आप भूल मत जाइएगा, याद रखिए. ऐसा ना हो कि आगे पाठ पीछे सपाट. यहाँ तो हम पाठ अटेंड कर रहे हैं, एवरीडे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पीछे पूरा सपाट होता जा रहा है. सो ये नहीं होना चाहिए. आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए. आप डेली नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज भी करते रहिए. कल की क्लास में कितने सारे नॉलेज हमने डिस्कस किए, तो सारे नॉलेज आपको याद होना चाहिए. ये सॉल्ट वाला एनोलॉजी. कोई बोले प्रभु तो क्या सब कुछ छोड़ के ये इंद्रिय तृप्ति और ये सब नहीं करें, क्या करें फिर? तो ये सब आप करो, बट उतना ही करो जैसे सॉल्ट का सब्जी में जरूरत होती है, उतना ही बस. अदरवाइज ज्यादा करेंगे तो सॉल्ट को सब्जी में ज्यादा डाल दें ये सोच के कि सॉल्ट के कारण ही सब्जी टेस्टी होती है, तो सॉल्ट ही सॉल्ट डाल दो. So that is not going to serve the purpose. Purpose will be served when you appropriately, how much it is required, that much salt only you put in the sabji. In the same way, and this requires training. आप डायरेक्टली कुछ किचन में जाके कुकिंग नहीं कर सकते. वहां पर अपने अनुमान से आप सब्जी में नमक नहीं डाल सकते. आपको ट्रेन किया जाना चाहिए. यू शुड बी ट्रेन्ड बाय सीनियर सुपीरियर हु नोज दैट. जैसे माँ है, माँ को पता है कैसे कुकिंग करनी है, सब्जी कैसे बनाना. तो आप अगर आपको सब्जी बनाना सीखना है तो आपके माँ के गाइडेंस में सब्जी सीखना है. Even to learn the art of cooking is also great science. You have to learn from somebody. You cannot, by research you cannot understand, learn. Correct? So training has to be there. कितना सॉल्ट डालना चाहिए, कब कब डालना चाहिए. आप सीजनिंग के समय सॉल्ट डाल दिए तो क्या होगा? सब्जी में टेस्ट ही नहीं आएगा. तो कब सॉल्ट डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, ट्रेनिंग हैज टू बी. मदर सिखाएगी. उसी तरीके से लाइफ को कैसे जीना है, कितना सेंस एंजॉयमेंट, कितना भक्ति, कैसे बैलेंस करें, देयर मस्ट बी ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग के लिए यू रिक्वायर अ मेंटर गाइडेंस. सो without mentor, without guide, life will be topsy turvy. Life will be, puzzled, just like Arjuna is puzzled. So therefore he immediately sought shelter of a mentor. And who was that mentor? Krishna was that mentor. So Arjuna had Krishna as his mentor. So we should also have represent. Now Krishna is not there, but he has set a system where Krishna's representatives are there, that is devotees. Similarly, so just like Arjuna sought shelter for a mentor, similarly we should also seek shelter for a mentor. And mentors should be the representative of Krishna, that is devotees. This is very important. Otherwise we'll be puzzled, we'll be confused. आप सॉल्ट कब डालना पता ही नहीं चलेगा. करेक्ट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कब हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं जरूर, तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं सीख के फिर मैं अकेले इंडिपेंडेंटली मैं अपने लाइफ को बहुत अच्छे सिस्टमैटिक कर लूंगा. ये कभी नहीं होगा. इवन दो आफ्टर अटेंडिंग द क्लासेस, ऑल द क्लासेस, you have to be always under the guidance and the care and protection of devotee. Devotee will guide you how to advance, how to go in your life, and how to grow in your life, both the things. How to go in your life, how to grow in your life. So there has to be always a mentor in the life. Okay, so now the response answer we'll see. So लोगों का performance कैसा था? So कल 16 लोगों ने परफॉर्म क्विज अटेंड किया. So
Tarun Khatri has got 9 out of 10. Madhav now 9. Every day Madhav is getting 9 only. Why Madhav? Shekhawat 6. RKT. I'm not able to understand. Who is that? RKT has got 8. Purvika 9. Yash Chaudhary 9. I think Mayank Sharma 8. Ratindra 7. Arshpreet 7. Krishna 10 out of 10. Wow, very good. Who is this Krishna? आशीष 8, पीयूष 7, भव्या 5. भव्य कैसे 5 कैसे हो गया आपका? हर्ष 9, वेरी गुड हर्ष. शिल्पा 5. शिल्पा आपका बहुत कम है. ध्रुव अग्रवाल 7. सो इस बार तो केवल एक का ही आया 10, कृष्णा. सो अदर्स दूसरे लोग क्या करें भाई? अच्छे से क्लास अटेंड करिए सब लोग. चलो ठीक है. सो फॉर कृष्णा बिग राउंड ऑफ अपलॉड. 10 आउट ऑफ 10. हरी बोल. सो सब लोगों को अच्छे से क्लास अटेंड करना है. 10 आउट ऑफ 10 सबका आना है भैया. कम क्यों आ रहा है आप लोगों का नंबर? So now we'll be discussing a third chapter of Bhagavad Gita. So I'm going to share the screen. Third chapter is Karma Yoga. What is that? Karma Yoga. So how to perform karma, that is explained here in this chapter. This chapter is very, very interesting chapter. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram. Hare. Okay, let us discuss. So आपको एक बहुत important line मैं बता देता हूँ. रिलीजन विदाउट फिलोसफी, सेंटिमेंट और फैनेटिसिज्म. एनी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सो दैट बिकम्स सेंटिमेंटल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा याद रखना. रिलीजन विदाउट फिलोसफी, सेंटिमेंट और फैनेटिसिज्म. और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन. और कोई भी फिलोसफी आप दे रहे हैं, उसका कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है, शास्त्रिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं बोल रहे हैं, स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं दिया हुआ हो, फिलोसफी है आपका हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मेंटल स्पेकुलेशन. आपने उसको कहाँ क्रिएट किया? अपने फैक्ट्री ऑफ माइंड में क्रिएट किया. जो फैक्ट्री ऑफ ब्रेन है ना, उसमें आपने इसको क्रिएट किया है. सो इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन. सो मेंटल स्पेकुलेशन इज यूजलेस इफ इट इज नॉट बैक्ड विद रिलीजन और स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट अंडरस्टैंडिंग यू हैव डेवलप्ड टिल नाउ. हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए, तो आप लोग ये रिफ्लेक्ट करना है. आज की क्लास के बाद आप लोगों को रिफ्लेक्ट करना है कि हमने क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया. ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है आज का. आफ्टर द क्लास यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ. सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं इसको. इनफैक्ट अगर आप जाएंगे ना MBA वगैरह करने, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, या बड़े बड़े CEOs वगैरह होते हैं जो कंपनी के, they have a practice of self assessment every day. They start their day with self assessment कि मैं कल क्या क्या गड़बड़ किया, मैंने मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने कहाँ रूल्स को ब्रेक किए. मुझे आई वॉज नॉट सपोज टू डू दिस बट आई हैपन टू डू दिस. मैंने किसको हर्ट किया बाई माई एक्शन और बाई माई वर्ड्स, किसको मैंने डिसरिस्पेक्ट किया. और तो उसको एनालाइज करके आज एसेस करना कि आज मुझे इसको अवॉइड करना, आज किसी को मुझे हर्ट नहीं करना है. इवन इन माइंड आई शुड नॉट हर्ट एनीवन. आई शुड नॉट थिंक बैड अबाउट एनीबॉडी इन द माइंड आल्सो. व्हाट टू स्पीक ऑफ वर्ड्स एंड एक्शन. उसको बोलते हैं बॉडी माइंड वर्ड्स, BMW. वी शुड ऑलवेज फॉलो दिस BMW बॉडी. वी शुड ऑलवेज हैव दिस BMW कार विद अस. हमें हमेशा ये देखना है कि whether I am offending anybody with my body or mind or words. सो ये हमें असेसमेंट करना है कि कल मैंने किया तो आज नहीं करना. कल मैंने चैंटिंग नहीं कर पाया, मैं आज मैं करूंगा. कल मैं आई हैव टेकन कमिटमेंट ऑफ चैंटिंग 4 राउंड्स बट आई कुड नॉट चैंट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. सो आज मैं सबसे पहले चैंटिंग करूंगा. आई विल स्टार्ट माई डे विद चैंटिंग 4 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र. कल मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया, या कल मैं क्लास पूरा अच्छे से नहीं, नोट्स नहीं बना, तो सेल्फ असेसमेंट करिए एवरी डे. दिस सेल्फ असेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल टेक यू, अगर आप 1 महीने सेल्फ असेसमेंट करिए ना, यू विल एडवांस लाइक एनीथिंग इन बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. दोनों में आप बहुत अच्छा ग्रो करेंगे. एक्सपोनेंशियली देयर विल बी डेवलपमेंट इन यू. No need of motivational speaker hearing them and all. Just do self assessment every day.
10 मिनट्स लगता है बस, 5 to 10 मिनट्स। आप लोग नोट डाउन करो। नोशन एक ऐप होता है, नोशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऐप है। उसमें आप नोट्स बना सकते हो, उसमें आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, कल मैंने ये किया था, आज मुझे इंप्रूवमेंट करना है। सो अब लिखिए, नोट्स बनाइए, सेल्फ असेसमेंट डेली 5 से 10 मिनट, स्टार्ट योर डे। बट क्या होता है, हम लोग उठते ही हैं लेट। जब क्लास का टाइमिंग होता है 10 मिनट पहले उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे भी नहीं, ब्रश भी नहीं करेंगे, ऐसे ही भागेंगे। सो दैट इज द सिचुएशन, करंट रियलिटी ऑफ टुडेज यूथ, which is very very horrible, very dangerous। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए हमें। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, सूरज निकलने से 90 मिनट्स बिफोर ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। सनराइज से 90 मिनट्स बिफोर स्टार्ट हो जाता है, 90 मिनट्स रहता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम नहीं उठते हैं तो हम सूरज निकलने के बाद उठ रहे हैं। एक्चुअली वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, हमारा जो एज है कम हो रहा है। वी आर रिड्यूसिंग आवर लाइफ, our lifespan is getting reduced, and we are inviting many miseries and diseases in our life। ये लोगों को पता नहीं। Doctors, engineers, philosophers, everyone, they will be philosophizing, preaching to the whole world, motivating. Doctors are treating everyone, engineers are developing so much, but they are not able to develop or treat or philosophize themselves। Doctors are treating others, but they are not able to get out of the addiction। स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इलिसिट एक्टिविटीज कर रहे हैं, सुबह में सूरज निकलने के बाद तक सो रहे हैं। सो खुद को ट्रीट नहीं कर पा रहे, खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे। इंजीनियर्स डेवलप कर रहे हैं बहुत सारा, खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे। सो हमें पहले ये डेवलप करना है अपने अंदर। बहुत डेंजरस सिचुएशन है अभी यूथ का। सो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हम, सूरज निकलने के बाद अगर हम उठते हैं, सो वी आर किलिंग आवर सेल्व्स। और पूरा डे यू हैव स्टार्टेड योर डे विद डिफीट, सो यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। व्हेन यू गेट अप आफ्टर सनराइज, यू आर डिफीटेड। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। तो जब आप सूरज निकलने से पहले उठते हैं तो आपके पास टाइम है, देन यू कैन डू सेल्फ असेसमेंट। अदरवाइज टाइम ही नहीं, भागो, उठते ही आपको क्लास अटेंड करना, ये सारे बहुत सारे टास्क पेंडिंग है, भागो, सेल्फ सेल्फ के लिए टाइम ही नहीं, तो सेल्फ असेसमेंट क्या करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनालाइज करना, क्लास के बाद आज एनालाइज करिए आप लोग कि मैंने क्या सीखा अभी तक, मुझे क्या करना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी नॉलेजेस मैंने सीखी, तो कैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ अपने लाइफ में। करेक्ट, ये आपको, ये आप लोगों को ये टास्क आज करना है। ओके, सो सेकेंड चैप्टर कृष्णा ने अर्जुन को मोटिवेट किया बहुत अच्छे से। सो अर्जुन थर्ड चैप्टर में अब स्टार्ट करते हैं बोलना। अर्जुन क्या बोलते हैं, ओ जनार्दना, ओ केशवा, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruity word। एक्चुअली क्या हुआ, सेकंड चैप्टर सुन के अर्जुन बेविल्डर्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसमें कृष्णा ने अर्जुन को ये भी बोला कि यू फाइट। थर्ड सेक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं फाइट। देन फोर्थ सेक्शन जैसे बुद्धि योग स्टार्ट होता है, उसमें कृष्णा बोल रहे हैं सर्विंग कृष्णा इज बेटर देन एनी अदर एक्टिविटी, सो वी शुड सर्व कृष्णा। सो अर्जुन जो है, उन्होंने जैसे कल एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि प्रभु, ये अगर हमें मान लो अपनी ड्यूटी करनी है, पीएचडी करना है या कुछ करना है, सो हम उसमें इतने एनग्रॉस हो जाते हैं कि हमारा जो भक्ति कृष्णा कौन, जो डाइल्यूट हो जाता है, छूट जाता है। सो कैसे मैनेज करें, हम ज्यादा इन सब चीजों में फंसेंगे तो हम माया में चले जाएंगे। करेक्ट। सो अर्जुन भी यही समझ रहे थे, कुछ अर्जुन भी ऐसे कंफ्यूज हो गए। उन्होंने क्या सोचा कि जो कृष्णा ने अर्जुन को बोला था ना फाइट, तो फाइटिंग को उन्होंने मटेरियल समझ लिया। और जो फोर्थ सेक्शन में कृष्णा ने अर्जुन को बोला कि यू यू वर्शिप मी, स्पेसिफिकली आप देखेंगे 2.61 में कृष्णा बोल रहे हैं मत परा, उसमें बोल रहे हैं कि यू थिंक ऑफ मी, यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, यू बिकम माई डिवोटी। सो अर्जुन दोनों को सेपरेट कर दिए और उन्होंने सोचा एक्टिंग मतलब परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड सर्विंग कृष्णा इज टू डिफरेंट थिंग। तो वही यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्णा, आप मुझे एक जगह तो बोल रहे हो कि फाइट करो, दूसरी जगह बोल रहे हो कोई मेरी वर्शिप करो, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों बोल रहे हो आप मुझे, ये मुझे आप कंफ्यूज क्यों कर दिए। सो एक्चुअली कृष्णा कंफ्यूज नहीं किए थे, अर्जुन कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भक्ति मीन्स इनर्सिया, मतलब कोई ड्यूटी नहीं करना। भक्ति मीन्स सब कुछ छोड़ दो और जंगल में चले जाओ और अपना वहां पर ध्यान करो। नहीं, एक्चुअली में भक्ति मीन्स एनीथिंग यू कनेक्ट विद कृष्णा, दैट बिकम्स भक्ति। भक्ति का सिंपल डेफिनेशन है
भक्ति बहुत रॉकेट साइंस नहीं है. Anything you connect with Krishna, that becomes bhakti. So you have to add Krishna in your life. Bhakti does not ask you to, reject things. Yeah, of course, bad habits we have to remove, we have to give up. But bhakti does not ask you to give up your duty, your responsibility, nothing. Bhakti will ask you to add Krishna. Bhakti means you have to add Krishna in all your activities. So then your activity becomes bhakti. Otherwise, your activity is karma. It is not bhakti. So karma means कर्म बंधन. So again यहाँ कौन एनोलॉजी आएगा, कौन बताएगा? यहाँ पर एक एनोलॉजी आएगा, सिल्क वर्म वाला एनोलॉजी. चलो आप लोग अच्छे से नहीं अटेंड कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, जल्द तुरंत क्विक बोलना है. क्विकली कोई मैं एनोलॉजी पूछ रहा हूँ तुरंत बोलना. हाँ प्रो, यहाँ पर ये सिल्क वर्म वाला एनोलॉजी आएगा. जैसे सिल्क वर्म अपने लिए अपने सलाइवा से वो बनाता है और उसी में फंस के मर जाता है. सो बोलते कर्म बंधन. सो अर्जुन ने भी ऐसे दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया, इसीलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गए. सो यहाँ पर लिखा भी हमने कि क्यों कंफ्यूज हो गए. 2.49 में कृष्णा ने बोला कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फॉर डिस्टेंट एंड वार इज सर्टेनली एन अबॉमिनेबल एक्टिविटी. सो पहले तो 2.38 या 38 में कृष्णा ने बोला फाइट, एंड देन 2.49 में बोला कृष्णा ने दूरेण ही अवरम कर्म, मीन्स कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फॉर डिस्टेंस. मीन्स ये अवरम कर्म जो अबॉमिनेबल एक्टिविटी से दूर रहना. सो अर्जुन ने दोनों डॉट को कनेक्ट किया कि ये फाइटिंग अबॉमिनेबल एक्टिविटी है, करेक्ट. सो इसे कृष्णा बोले इसे दूर रहना है. और 2.38 में उन्होंने मुझे बोला फाइट भी करो, तो ये कृष्णा कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मुझे, गेटिंग. सो ये अर्जुन इसलिए कंफ्यूज हो गए. अगर आप अपने से पढ़ोगे तो आप समझ में नहीं आएगा. हमने इतनी बार पढ़ा, हमने इसलिए समझ पाए हैं कि अर्जुन कहाँ कंफ्यूज हो, क्यों कंफ्यूज हो. सो इसलिए यू रिक्वायर गाइडेंस. अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज, क्योंकि 2.49 जैसे ही कृष्ण ने बोला 2.49 50 51 आप श्लोक पढ़ोगे ना, तो वहां पर कृष्णा ये सब बोल रहे दूरे नहीं अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध शरणो मनविच कृपणा फल हेतवा. ये सारे श्लोक कृष्णा बोलते हैं, तो इसलिए अर्जुन कंफ्यूज हो गए. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. So Arjun ये बोलते हैं. So neither not by merely abstaining from work can achieve freedom from reaction. So कृष्णा बोलते हैं फिर. So जैसे ही अर्जुन ने ये 3.1 and 2 में अर्जुन के क्वेश्चन थे और अर्जुन ने बोला कि मेरा इंटेलिजेंस बेविल्डर हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक ही चीज को दो तरीके से बोल रहे हो. मतलब एक जगह बोल रहे हो कि आप फाइट करो, एक जगह बोल रहे हो मत फाइट करो, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. फिर कृष्णा स्टार्ट स्पीकिंग. सो उसमें परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हमें समझना. नॉट बाई मियरली abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. So ये वर्स नंबर 4 है. तो यहाँ पर ये कृष्णा क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि हम अगर वर्क से एब्सटेन कर दें तो हम सारे रिएक्शन से फ्री हो जाएंगे, है ना. हम ड्यूटी हम क्योंकि हमें भक्ति करना है और हमें अपनी ड्यूटी भी करना है. तो ड्यूटी तो क्या है, वो सिन है क्योंकि वो भक्ति नहीं है, और हमें भक्ति करना है. तो ड्यूटी करेंगे तो हम क्या फंसेंगे, रिएक्शन आएगा, तो हम ड्यूटी को छोड़ देते हैं, करेक्ट. यही ऐसा लोग सोचते हैं, अर्जुन ने भी ऐसा सोचा था. तो क्या करते हैं, हम रेनाउंस कर देते हैं सब कुछ को और जंगल में चले जाते हैं. अर्जुन ने इनफैक्ट बोला भी था कि बेटर आई विल लिव बाय बेगिंग, आई विल गो इनटू द फॉरेस्ट, व्हाई शुड आई किल देम. सो वही हम लोग भी ड्यूटी को रिनाउंस करके सोचते हैं कि एक्टिविटीज को छोड़ देंगे तो रिएक्शन नहीं आएगा, देन आई विल बी एट पीस, नो रिएक्शन विल कम. बट एक्चुअली कृष्णा फ्यूचर वर्सेस में बोल रहे हैं, फर्दर वर्सेस में, कि we will be forced to act helplessly according to the qualities you have acquired from the modes of material nature. See verse number 5 में कृष्णा बोल रहे हैं लॉज ऑफ नेचर. जैसे मैंने बताया मदर दुर्गा प्रकृति, इनके 3 एजेंसी हैं, 3 एजेंट्स हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण. इनके थ्रू वो सब सारे जीवों को बांध रखा. देखो फोटो में आप देखो, वी ऑल आर कॉट अप बाय दीज 3 मोड्स. और हम हेल्पलेसली वी आर फोर्स्ड टू एक्ट, हेल्पलेसली वी आर फोर्स्ड टू एक्ट. आप एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं सकते, इनर्सिया में नहीं रह सकते आप. योर माइंड विल बी एक्टिव और यू विल बी डूइंग समथिंग. अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो आप सिंफुल एक्टिविटी करेंगे. सो देयरफॉर कृष्णा सजेस्ट दैट
No one can refrain from doing something not even for a moment. No one can refrain. मतलब आप इस स्टेट में आ ही नहीं सकते कि आप कुछ ना करें. एक हो सकता है आप एक्सटर्नली कुछ ना करें लेकिन इंटरनली माइंड आपका चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री मोड्स. It is the nature of the soul to be always active. Without the presence of the spirit soul, the material body cannot move. The body is only a dead vehicle to be worked by the spirit soul. जैसे एक एक बेस्ट ऑफ द कार BMW कार हो चाहे आपके पास, अगर उसमें ड्राइवर नहीं है तो कार इज यूजलेस. Similarly, if body is not having the driver, that is soul, then body is useless. So and soul is active by nature. Soul is active by nature. So therefore हम एक्टिविटी से रिफ्रेन कर ही नहीं सकते. जो इस श्लोक में लिखा बता रहे हैं कृष्णा वर्ष नंबर 5 में कि नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट. ऐसा क्यों है कि आप एक सेकंड के लिए शांत नहीं बैठ सकते, माइंड में कुछ कुछ करते रहेंगे, एक्सटर्नली तो करेंगे ही. क्योंकि सोल का नेचर है एक्टिव रहना. दिस इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव. सो एक बहुत अच्छा यहाँ पर प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं, डोंट बी अ प्रिटेंडर. प्रिटेंडर क्या मतलब है? बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आप फोटो देखिए, वो टीवी देख रहा है ना, टेलीविजन देख रहा है. सो बहुत सारे भागवत कथाकार सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट वो क्या करते हैं, स्टेज पे आएंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन जैसे ही खत्म होगा भागवतम और सारी चीजें, वो पान चबाने लगेंगे, पान खाएंगे, टीवी देखने लग जाते हैं, क्रिकेट आईपीएल देखने लग जाते हैं. सो अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट पोज कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन वो मटेरियलिस्ट के जैसे बिहेव कर रहे हैं. So, ऐसा नहीं करना. प्रिटेंडर. यस, हम जो साधकाज हैं, साधकाज मीन दोज हु आर बिगिनर्स. सो ऑफ कोर्स हम अभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हुए हैं कि हम इन सब चीजों से रिफ्रेन कर पाए, इससे हम एब्सटेन कर लें अपने आप को. तो ये प्रोसेस हम करते हैं, मतलब भक्ति भी करते हैं, धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं, सब चलता रहता है. बट जैसे जैसे हम चैंटिंग धर्म करते जाएंगे, अधर्म से हम फ्री होते जाएंगे. और पर्पज ऑफ लाइफ शुड बी स्टॉप डूइंग अधर्म एंड फुली डूइंग धर्म. धर्म मीन्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा. So, but in the beginning, yeah, of course, neophyte state is there. So on the neophyte stage, will be forced by three, because three modes are always influencing us. Always remember, you'll be forced to do some adharm activity. It doesn't matter. In the beginning, it will happen, but we should नॉट गेट डिस्टर्ब. अरे यार मेरे से ये धर्म हो रहा है, मैं और परेशान हो गए, आप डिस्टर्ब हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, फिर सोचे यार मैं बहुत ही सफोकेटेड लाइफ जी रहा हूँ. जैसे भगवत गीता क्लास अटेंड करने लग गया ना, वहां प्रभु सिखाते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड मैं यही करता हूँ. तो फिर वो द्वंद में जीवन चलने लगता है ना. द्वंद बहुत बड़ा इंटरनल फाइट होता है. तो फिर क्या करते हैं, अरे यार पहले मैं बहुत पीसफुल लाइफ जी रहा था, मस्त रहता था, अभी जैसे क्लास अटेंड करने लग गया हूँ, ये द्वंद, ये फाइट, इंटरनल फाइट चलता है, तो इससे अच्छा क्लास छोड़ दो यार, क्योंकि फॉलो तो कर नहीं पाऊंगा एनीवे में, ये इतना डिफिकल्ट है, ये सब कर नहीं पाऊंगा मैं, तो इससे अच्छा क्लास छोड़ दो, फॉलो करना ही छोड़ दो. फिर वो बैक टू नॉर्मल स्क्वायर हो जाता है और फिर से मटेरियलिस्टिक. ये बहुत डेंजरस, ये नहीं करना हमें कभी. स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में हम हमारी क्लास सुनेंगे, हम उसमें आपको बताएंगे ये सब नहीं करना है, ये सब अधर्म है, हमें अर्जुन को पाथ फॉलो करना है, हमें दुर्योधन के जैसे नहीं रहना, इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है. लेकिन क्लास के बाद हो सकता है आप जाके अधर्म ही कर दें. तो स्टार्टिंग में होगा, बट आपको फेथ रखना है चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र पे, और ये क्लासेस अटेंड करेंगे, धीरे 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 प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगा आपके अंदर. और आप अपने अंदर देखेंगे 2 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा आपके अंदर. there will be significant change, substantial change will see, you will be able to see, witness. So ये ये वाला जो लाइन है, ये हमारे लिए नहीं, बिगिनर्स के लिए नहीं है. जो अपने आप को बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिस्ट दिखाते हैं ना, उनके लिए है. वो अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट दिखा रहे हैं और अंदर ही अंदर वो कुछ और कर रहे हैं. और ये उनके लिए भी है जो सोशल मीडिया में और ये मूवीज में है. ये मूवी मेकर्स और ये जो एक्टर्स, दे आर ऑल प्रिटेंडर्स. मूवी में दिखाते हैं कुछ और, करते कुछ और. एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत फेमस एक्टर है, वो एक एपिसोड करता है, उसमें वो विमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है. बहुत बड़ा एक्टर है वो. हो सकता है आप समझ जाए, नाम मैं नहीं लूंगा. वो विमेन एम्पावरमेंट की बातें करता है कि विमेन को ये देना चाहिए, वे ये देना चाहिए. और आज विमेन एम्पावरमेंट कर करके विमेन को इतना एम्पावर कर दिया है कि सारे लॉज विमेन के फेवर में है.
एनीवे वो द डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, बट उस एक्टर विमेन एम्पावरमेंट की बातें कर रहा है और वो मूवी में उसी वुमेन को ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन दिखा रहा है। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, वो लड़की चीज है क्या? लड़की को कॉमोडिटी से दिखाया जा रहा है मूवी में। गाने सुनो आप, कैसे कैसे गाने बना, और आजकल की लड़कियां भी इतनी लेस इंटेलिजेंट हो गई, उनको जब ऐसे बोलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ दे आर ग्लोरीफाइंग मी। सो विमेन एम्पावरमेंट के नाम में गर्ल्स आर गेटिंग चीटेड, girls are getting cheated in the name of women empowerment. Same person in one episode he is empowering the woman, he is talking about woman, and on the screen movie he is addressing woman as object of sense gratification. If you want to gratify, so women is the object. So objectification kar raha, he is objectifying a woman as an object or commodity, as if woman is an object. So ये अभी प्रिटेंडर जो ये लोग हैं ना, ये दे आर ऑल प्रिटेंडर्स, और हमने इनको अपना हीरो मान रखा है, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको अपना आइकन मान रखे हैं हम लोग। सो देयरफॉर वी शुड बी वेरी वेरी अलर्ट कॉशियस, किसको हम फॉलो कर रहे हैं। और वर्णाश्रम, हमारा जो स्पिरिचुअल, जो हमारा वर्णाश्रम धर्म था, हमारा वैदिक कल्चर था, उसमें वुमेन को हाई प्रायोरिटी दिया जा रहा था, हाईएस्ट प्रायोरिटी। वुमेन वर दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। लेकिन ये these heroes, these movie makers, these so-called capitalists, what they started doing, they started um, creating a propaganda कि women को देखो घर पे सारे काम काज करवाते हैं, they are getting misutilized, underutilized, and उनको तो women को जो है क्या एक word use करते हैं, स्लेव बना दिया है, स्लेव, women are slave। सो धीरे धीरे ऐसे मेंटालिटी क्रिएट करके उनको तो घर में ही रहना है, उनको बच्चे पालने, कुकिंग करना है, स्लेव बना दिया वुमेन को। वुमेन कैन नॉट एक्सरसाइज देयर फ्रीडम, दे आर नॉट फ्री, वी शुड एम्पावर वुमेन। तो ऐसा प्रेजेंट करके वैदिक कल्चर को नीचा दिखा दिया, और ये दिखाया कि हम आपके लिए, हम वी आर फॉर द वुमेन, और आज वुमेन आर एम्पावर्ड टुडे। वो घर से बाहर आके सब फील्ड में पहुंच गई। लेकिन अगर आप देखेंगे, दीज पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, दे आर ओनली वन हु आर एक्सप्लॉइटिंग द वुमेन आल्सो। So these are pretenders. So we should be intelligent enough whom to follow. So best is following Krishna and devotees. Even though प्रभुपाद ने बहुत जगह बोला है women are less intelligent there, क्योंकि women समझ नहीं पाती कि ये मुझे चीट कर रहे हैं। women को ग्लोरीफाई कर दो, बस women will be finished। उनको बड़ा अच्छा लगा, हाँ उनको लगेगा सामने वाला जो है मेरा हितैषी है। जस्ट women, ये women का एक वीकनेस है, women को ग्लोरीफाई कर दो बस। और ये लोग यूज करते हैं इस टैक्टिक को, और women को कैप्चर कर लेते हैं, उनको मिसलीड करते हैं। सो प्रभुपाद, इवन दो प्रभुपाद ने इसलिए बोला women are less intelligent, बट प्रभुपाद ने women को क्या हाईएस्ट पोजीशन दिया है। इस्कॉन में women are given हाईएस्ट पोजीशन। एक लड़की अगर हमारे मंदिर में आती अकेले, सारे मेल है आरती में, अगर एक कोई लड़की है, वो सेफ फील करती है, he feels protected in the temple। but that same woman, if she is alone in any other place, she feels highly insecure। तो प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम दिया है। even though Prabhupada says women are less intelligent because they cannot understand कि बहुत इमोशनल because women are more emotional, so इमोशनल हो जाती हैं, तो इंटेलिजेंस, जैसे ही आप इमोशनल होते हैं तो इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देता है, तो इंटेलिजेंस चेक हो जाता है, तो आप सोच नहीं पाते आपके लिए सही क्या गलत है। even though Prabhupada has said this, but still Prabhupada has given high, one of the unique position in ISKCON to a woman। So Prabhupada is not a pretender. Prabhupada is straightforward, but he is savior। But outside people, they will glorify you, but they will kill you also। So we should be very alert to whom we should follow। So but best is following Krishna and Prabhupada। He who makes a show of being a yogi while actually searching for the object of sense gratification must be called the greatest cheater, even though he sometimes speaks of philosophy। So बहुत सारे स्पिरिचुअली आप यूट्यूब में देखो, उनको पर्सनल लाइफ को देखो, क्या करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं और अपने आप को स्पिरिचुअलिस्ट बोल रहे हैं। सो दे आर प्रिटेंडर। सो कृष्णा बोल रहे हैं प्रिटेंडर नहीं बनना है। नाउ दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप बिकॉज टाइम इज ओवर।
So if you have any question, you can ask. And now I am going to share the link of today's class. Okay, I'll be sharing after some time. Maybe in the group, I will share the link of the quiz, today's quiz. And if you have any question, you can ask. Anybody has any question? What we discussed? No question? Okay, so we'll stop. Thank you very much, Hare Krishna. I'll share the link of the quiz in the group, so you can get from there and attend the quiz. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. भगवद गीता की जय.